गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वॉइस। लास्ट में मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस। तो सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस। पिछली बार मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली टेंसेस की हेल्पिंग हुआ जो कि रिक्वायर है चेंज ऑफ टेंस में। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, डू और डज। डू डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात करें तो ये एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल डू एंड डज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस विल बी कन्वर्ट इनटू इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज golden rule that passive always has third form. After present continuous tense is am are plus first form plus ing. It will be convert is am are plus being plus third form. Present simple will be converted into is am are. Is am are plus first form plus ing will be converted is am are plus being plus third form. After that has and had. Has have plus third form. It will be converted into has been, have been plus third form. And at last has been, have been plus ing. No change. These are present tenses: present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट की। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू was one plus third form. Look here, like present tense, past also will be converted. Like do and does is am are. Did first form, was and were. Is am are ing, is am are being. Like that was and were plus first form plus ing. It will be converted into was, were, being plus third form. After that had plus third form. It will be converted into has been plus had been plus third form. Had third will be converted had been third form and had been plus ing. No change. Look now, present tense and past tense. You can see here present tense, past tense. First of all, do and does is am are. Is am are plus ing, is am are plus being plus third form. Has and have third form, has been and have been third form, has been, have been, no change. After did first form was and were, ing, was were plus being plus third form. Had been third form and had been plus first form plus ing, no change.
ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट। इसको एक बार आप राइट डाउन करें और इसको लर्न करें, उसके बाद में हम चलते हैं कॉन्सेप्ट में फ्यूचर में। Now future tense, will and shall. Will, shall plus first form, it will be converted into will be, shall be plus third form. Will and shall will be converted to will be and shall be. Now will be, shall be plus ing. No change. After will, have, shall, have plus third form, it will be converted into will have been and shall have been plus third form, and at last will have been and shall have been plus first form ing, no change. Now models. Always model has first form, and when we are going to convert active to passive, you have to change model plus be plus third form. Model plus first form will be converted to will be third form. तो अब तक जो हमने पढ़ा वो था टेंसेंस। आगे देखेंगे आप प्रोनाउन चेंज। जैसा कि एक बार हम रिवाइज करें, पहले मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें रिक्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ टेंस एंड सेकंड चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस का जो मैंने आपको चार्ट बताया, उस चार्ट को आप राइट डाउन करने के बाद में लर्न करेंगे, और उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक हमारा वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन जैसा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। First of all, you all know there are three kind of person: first person, second person, and third person. So here you can see person, first person, I and we. First person, I, we. Second person, you, and third person, he, she, it, they, and net. Open it. First person I and we, second person you, third person he, she, it, they, and net. So first of all, I will be converted to me, we will be converted to us, you, he, him, she, her, it, they, them, and them will be them. So look and see. First of all, when we are going to convert active to passive, so first of all, if your subjects I will be converted to me, and if we have in any type of sentences object me, so we will be converted to I. Like this, we will be into us, as us will be converted to we. You, he, him, and him will be converted to
ही। तो दिस इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब देखो एक बार हमने पढ़ा चेंज ऑफ टेंस, सेकंड हमने पढ़ा चेंज ऑफ प्रोनाउन। लेट अस सी नाउ एन एग्जांपल हाउ वी नीड चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ टेंस इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। चार्ट को राइट डाउन करें और इसे लर्न करें। आगे देखिए हम लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल में जैसे हम एक एग्जाम्पल है छोटा सा, राहुल विल, here you can see Rahul will solve these questions. First of all, Rahul, it is subject, will helping verb, solve main verb, first form, and this question is object. So now first of all we are going to change active into passive. तो first of all change object into subject. तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट जो हमारा these questions है वो बन जाएगा क्या, these questions, subject object will be converted into subject. अब यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे टेंस का, तो यहाँ पे टेंस हमारे पास में है will solve. It means we can say first form plus will and shall plus first form. It means it is future simple tense. तो jैसा एडमिन आपको चार्ट बताया था फ्यूचर सिंपल will and shall will be converted to will be and shall be. तो here we have to mention will be. आफ्टर will be के बाद में आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म shall. उसके बाद में यूज ऑफ by and subject will convert into object. तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है राहुल. तो दिस इज एक्टिव and this is passive. Rahul will solve these questions. तो these questions will be solved by Rahul. अब मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बता रहा हूँ, इन सिंपल रूल्स को आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करना है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन. और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन आप लर्न करें उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस को, और टेंस कौन से में कन्वर्ट होता है. ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट में. उसके बाद में यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग चेंज ऑफ टेंस. आफ्टर यूज ऑफ थर्ड फॉर्म एंड यूज ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट. अब आगे आप मेंशन करेंगे some rules how to change an active into passive. देखिए आपका अगला जो हेडिंग होगा वो होगा some rules how to change an active into passive. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है इसमें सब्जेक्ट. जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया उसके बाद में सेकंड रूल यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सेकंड आपको यूज करना है इसका हेल्पिंग वर्ब का. ध्यान दें हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यूज होती है अकॉर्डिंग चेंज ऑफ टेंस. आप जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करने जा रहे हैं वो यूज हो
इसके अकॉर्डिंग हेल्प चेंज ऑफ टेंस। जो चार्ट अभी मैंने आपको बताया था कौन सा टेंस कौन से टेंस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में आपको थर्ड जो यूज है वो है कौन सा, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद में जो आपने चेंज ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया उसके बाद में आपको यूज करना है थर्ड फॉर्म का। उसके बाद में फोर्थ यूज ऑफ बाय एंड फिफ्थ जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू सब्जेक्ट, वैसे ही आपको लास्ट में करना है सब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करें, सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है आपको, उसके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज, उसके बाद में बाय और सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न को हम इस रूल को हम एक पैटर्न से भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान दें सबसे पहले हियर एक्टिव के अंदर सबसे पहले ध्यान दें सब्जेक्ट के बाद में आपको देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखने को मिलेगा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दें हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है इसमें सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो बनकर आ गया यहाँ पे क्या सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको यूज करना है इसका हेल्पिंग वर्ब का। ध्यान रखना इस हेल्पिंग वर्ब में ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करें वो आप यूज करें चेंज ऑफ टेंस। तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, उसके बाद में यूज ऑफ बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट और आपका जो कॉम्प्लीमेंट जो लास्ट में वैसा का वैसा आ जाएगा। अब एक मिनट के लिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल है, रूल्स को आप राइट डाउन करें, पैटर्न को राइट डाउन करें, आगे हम और देखने जा रहे हैं। उससे पहले लेते हैं एग्जांपल, और जैसा मैं इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। एग्जांपल लेंगे अपनी बुक या अपनी ग्रामर में से जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। अभी तक हम जो देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स। असर्टिव ध्यान दें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में या पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं, 5 काइंड आपको मैंने बताया था। और ये जो पैटर्न है वो कौन सा है असर्टिव का। अब देखिए यहां पर ही इज plucking the mango। He is plucking the mangoes। तो यहां पर देखो मैं इससे मैच करवा रहा हूं आपको। ही यहां पर है क्या सब्जेक्ट, इज हियर हेल्पिंग वर्ब, plucking is main verb and the mango is object। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लास्ट में होता तो लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद में कुछ प्यारा लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल उसको लास्ट में आपको ऐसा कैसा मेंशन करना है। तो ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं। ये सेंटेंस हमारे पास में जो है वो है कौन सा एक्टिव, और नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करेंगे इसमें सब्जेक्ट। कन्वर्ट करने का मीन इस ऑब्जेक्ट को आपको बना देना है क्या सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ गया द मैंगोज। देखो यहाँ पर मैंने मैंगो ने देखिए मैंगोज दिया है, प्लूरल दिया है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो इजमर प्लस आईएनजी है, ही यहाँ पर सिंगुलर था तो यहाँ पर इस था, यहाँ पर मैंगोज प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया। तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का आपको यूज करना है। तो टेंस चेंज में आपको लिखा है उसके लिए आप एक बार देखें इजमर प्लस आईएनजी इट मीन इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और चेंज ऑफ टेंस के अंदर आप देखें तो इजमर प्लस आईएनजी, तो इजमर का इजमर रहेगा और इजमर के साथ क्या जाएगा
being. So it is our second rule. जैसा मैंने आपको लिखवाया, use of helping verb, it will be used according change of tense. So the mangoes, here use of are, उसके बाद में आ जाएगा क्या, being. इजमार will be converted to इजमार plus being. उसके बाद में use of थर्ड फॉर्म, तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्या, प्लान. उसके बाद में यूज ऑफ बाई, तो यहां यूज कर दिया मैंने किसका, बाई का. और यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज लिखा है मैंने आपको, उसके अंदर आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम. तो यहां मैंने यूज कर दिया है किसका, हिम का. तो द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड बाय हिम, ये हो गया इसका क्या, पैसिव. तो यहां तक एक बार हम ध्यान दें तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन. और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चेंज ऑफ टेंस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वांट टू चेंज एन एक्टिव टू पैसिव, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज दैट टेंस, बिकॉज़ वी कैन चेंज टेंस आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस चेंज करने के लिए टेंस की पहचान करनी है, और टेंस की पहचान करने के बाद में आप उस शार्ट के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करेंगे. उसके बाद मैंने आपको रूल्स लिखवाए, एक आपके सामने मैंने पैटर्न लिखवाया है, इनके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है. तो ये जो रूल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं. अब जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मेरे साथ आप एक बार समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए इसको राइट डाउन करते रहेंगे. और राइट डाउन करना या वीडियो की क्लास लेना, इससे ही आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा. उसके बाद में आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक्सरसाइजेस वगैरह सॉल्व करनी है. अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं, देखो असर्टिव सेंटेंस. बीच बीच में जो मैं रूल्स आपको बताता हूँ उनका आपको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले अब हम ले रहे हैं कौन सा सेंटेंस, असर्टिव. असर्टिव सेंटेंस. देखिए मैंने आपको बताया वॉइस होता क्या है, वॉइस के काइंड कितने होते हैं, वॉइस को चेंज करने के लिए, पैसिव में चेंज करने के लिए किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है. अब हम देखेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस. तो यहां पे देखें असर्टिव, देयर आर टू काइंड्स ऑफ assertive sentence.